Good morning to all. Welcome to CTR DEPR 2020. Myself, Dr. Poonam Jaiswal. I feel proud to introduce to you a person for whom words feel short. Dr. N.K. Dubey, Professor in Botany, Banaras Hindu University, Varanasi, a university which is ranked third in the list of top 10 universities in the country by National Institutional Ranking Framework released by Ministry of Human Resource Development. Professor Dubey himself is listed in world's top 2% scientists list released by the Stanford University. He is fellow National Academy of Science, National Academy of Agricultural Science, Indian Botanical Society, Indian Phytopathological Society, Mycological Society of India, and also a visiting fellow in University of Bardhaman, West Bengal. As an enthusiast scientist, he is recipient of Young Scientist Award of Indian Science Congress Association, Professor P. Maheshwari Gold Medal of Indian Botanical Society, Dr. S.R. Bose Memorial Award of Indian Mycological Society, Professor M.J. Narasimhan Academic Merit Award of Indian Phytopathological Society. Dr. Dubey has been recognized among top reviewer by National Academy of Science and has received top reviewer award for exceptional contribution to the quality of international journals of food microbiology by Elsevier. Professor Dubey has 324 research publications and 13 books and 4 patents to his credit. He is also editor of Indian Phytopathology and subject editor proceeding of National Academy of Science under banner of Springer. Professor Dubey has chaired and coordinated sessions in many national and international conferences. To name a few, 9th International Congress of Plant Pathology, ICPP 2008, held in Torino, Italy. As subject expert, he is associated to Union Public Service Commission and many state public service commissions like Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Odisha, Himachal Pradesh, Jharkhand, Punjab, and Rajasthan. He has vast academic administrative experience also as coordinator applied microbiology and many more. Professor Dubey has been a brilliant academician as proved by recipient Young's Academic Award of BHU, that is Malviya Memorial Award, and awarded Most Productive Research Award 2019 by Institute of Science, BHU. Only this much of introduction is not enough if I do not mention his dedication towards his students. I am very glad to welcome a dedicated teacher, an enthusiast researcher, eminent academician, and very good motivator, Dr. N.K. Dubey. Welcome, sir. Okay, am I audible? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Okay, very good morning, and I am very happy to see Poonam Jaiswal here. Her introduction, although it is lengthy, but and I am very much delighted to deliver a talk. Good morning to everyone, and thankful to the organizers. I am very happy, and the topic which I have selected, that is, you see, a popular topic, everyone can understand. That is, you see, there is a slogan, popular slogan, and that is a opposite to that slogan. My lecture is ki the slogan is act, think globally, act locally. Think globally and act locally. But my slogan is think locally, act globally. And that is with reference to Indian medicinal plant knowledge. This I have selected here. And in this lecture, I shall try to present before you. You see, this is the era of a modern system of medicine. Several antibiotics are here. But even in this era, why I am delivering lecture on this medicinal plants, particularly ethnomedicine? So this will be the first thrust of my lecture. The second thrust of my lecture will be if India has huge opportunity in the field of medicinal plants. So what are these opportunities and what is our share in global herbal market? If we have so many medicinal plants, marvelous medicinal plants, so our share in global medicinal herbal market should also be very appreciable. I shall discuss on this issue.
If that is not so appreciable, what are the bottlenecks and what our government is doing behind this? These are some thrust on which I shall concentrate my lecture. Friends, in the year 2015, United Nations General Assembly has framed 17 agenda for sustainable development in different fields. That is, and these agendas has to be completed by 2013. There are 17 goals of sustainable development, and goal 3 is related to health. And the goal 3 is ensure healthy lives, promote well-being for all at all ages, childhood up to old age. We have to give health security, promote health to everyone, and that should be the health promotion should be safe, effective, quality, affordable to everyone. I shall try to present before you how these medicinal plants may be an important component of the goals of United Nations organizations for sustainable development. This I shall try to present before you. And friends, there is a campaign of India, Make in India campaign of our Prime Minister Narendra Modi. And this Make in India campaign aims to provide many jobs, huge jobs to our young people. People think that this Make in India program, in this Make in India program, only this information technology, computer, physics, chemistry is the important component. But friends, agriculture and pharmaceutical sectors are two important pillars on which human civilization is built up. And I shall try to present before you how the medicinal plants, components of medicinal plants may be important component, ingredient of this Make in India campaign. Friends, even in the era of this modern system of medicine, allopathic system of medicine, there are many reports, many time report, 80% population of the world is behind the use of medicinal plants. Still today, 80% population, they are using medicinal plants for cure of their health, in form of cosmetics, in form of spices, boosting immunity in our body. So this is 80% population of the world, they think. Why this 80% population is behind the use of medicinal plant? Earlier we were using medicinal plants. There were no allopathic system of medicine. The antibiotics were not discovered. But the use of medicinal plant was slow in cure of the diseases. But later on, the antibiotics were discovered, and these antibiotics cured the disease very rapidly in short duration. Different antibiotics were discovered, and on the discovery of one antibiotic, one Nobel Prize was given. One Nobel Prize for one antibiotic. And these antibiotics were regarded as magic bullet. बहुत जल्दी बीमारी को कंट्रोल कर रही है, इनको मैजिक बुलेट कहा गया है ना. एक नया चीज आ गया कंट्रोल को, पॉल हर्लिक ने कहा और प्राइज दिया गया. लेकिन इसमें हुआ क्या कि ऑल ऑफ अस नो दैट कि अर्लियर वी वर टेकिंग तुलसी का काढ़ा हम लोग लेते थे, डिकॉक्शंस लेते थे, भस्म लेते थे, मेडिसिनल प्लांट का पाउडर लेते थे, और उसमें एक कंपोनेंट नहीं होता था, मेनी कंपोनेंट्स टुगेदर सिनर्जिस्टिकली acting together. Some of the components may be enhancing the efficacy of the active principle. But in case of antibiotics, what is there? The antibiotics are single molecule compound. Single molecule compound formulated in form of antibiotic. Single molecule compound, single mode of action. Unka mode of action, akela mode of action hai. Because of this, there are many reports on development of resistance amongst the microorganism against the antibiotic. Antibiotic का single mode of action है,
तो आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है एंड दीज एंटीबायोटिक्स बिकम्स आउट ऑफ डेट, जिस पर हम नोबेल प्राइज दिए, मैजिक बुलेट की कहे, वो एंटीबायोटिक आफ्टर 5 years दैट बिकम्स इनइफेक्टिव एंड अनदर एंटीबायोटिक इज डिस्कवर्ड, अनदर नोबेल प्राइज इज गिवन। यू सी ये होता रहा है सीरीज ऑफ एंटीबायोटिक। तो दी डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस amongst the microorganism that is must। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है कि अपने प्रोजनी को खत्म कर देगा, या बौद्ध धर्म जैसे कलिंग का लड़ाई हुआ और खून खराबे को देख करके अशोक बौद्ध धर्म मान गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं करेगा। तो because of the development of frequent development of resistance amongst the microorganism, this is one major reason still today there is revival of the use of medicinal plants and 80% population of the world they are behind the use of medicinal plants. Not only this, today we are using, you see, modern system of medicine, उसको हम यूज करते हैं, बट देयर आर मेनी कंपोनेंट्स प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स which are used in modern system of medicine, and there is report कि 50% of the newly approved drugs since 1994 they are plant based। यहाँ बॉटनी के टीचर बैठे हुए हैं लोग। there are many medicinal plants like Rautia serpentina जिसके की प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। many anti cancerous plants and their products are used in modern system of medicine। one example is we are using aspirin as anti-inflammatory drug। this aspirin is used, but this aspirin is nothing। एस्पिरिन हम एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के रूप में यूज करते हैं मॉडर्न एलोपैथी में, बट दिस एस्पिरिन इज नथिंग but synthesized analog of salicin which is found in the bark of Salix alba। Salix alba के bark में salicin पाया जाता है। The Salix alba is known as willow plant and ethnomedicinally it was used by Native Americans, but the German company Bayer that formulated aspirin based on the salicin। I wanted to say that there are many plant based products which are important component of modern system of medicine। बात यह है कि आदमी जब आया and there was no antibiotics, तो क्या था, he was not knowing about the agriculture। हम खेती करना नहीं जानते थे, गेहूं पैदा करना नहीं जानते थे। आदमी जब इस धरती पर आया, आदि मानव ही आया होगा 5000 साल पहले, तो वो कुछ खाता होगा। तो देखिए वो क्या खाता था 5000 साल पहले, when we were not using agriculture, no knowledge of rice cultivation or wheat cultivation। हम राइस को खाते हैं, राइस को खाते हैं कि हमारी भूख खत्म हो जाए, इसके लिए हम राइस को खाते हैं। लेकिन पहले क्या था कि the earlier people, Indian people, they used to eat 7000 year। क्या था, एक पौधे के दाने को खाते थे, that is known as quinoa seeds, quinoa leaves, and this quinoa is Chenopodium quinoa। Chenopodium quinoa। We used to eat this quinoa, Chenopodium quinoa, but this now it has been documented। कैसे आ गया, इसको खत्म करो। तो सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। अच्छा, हाँ, लेकिन अब ये पता चला कि ये जो क्यूनोवा सीड है, ये क्यूनोवा सीड दैट कंटेन्स ऑल द इसेंशियल अमीनो एसिड्स। जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, दे आर फाउंड ओनली इन एग, दे आर फाउंड इन मिल्क, दे आर फाउंड इन सोयाबीन। लेकिन पहले जो हम खाते थे क्यूनोवा सीड्स को, तो उसमें सारी इसेंशियल अमीनो एसिड्स पाई जाती थी। मतलब यह है कि 7000 साल पहले जो हम थे, हमारा ये ऑब्जेक्टिव था कि हम
केवल हंगर को मिटाने के लिए गेहूं चावल नहीं खाएंगे, ऐसे पौधों को खाएंगे कि हमारी भूख भी मिले खत्म हो और हमको सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स मिले, हमको गुड क्वांटिटी में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन मिले। आज न्यूट्रास्यूटिकल टर्म आया है, आज आया है, लेकिन हमारी टेंडेंसी 7000 साल पहले थी न्यूट्रास्यूटिकल की, हम ऐसे खाने को खाएं जिससे कि हमारा मेडिसिन का भी काम आए और भूख भी मिले। बेस्ड ऑन दिस, the United Nations General Assembly declared the year 2013 as International Year of Quinoa। ये मनाया गया एक पौधे के नाम पर, न्यूट्रास्यूटिकल प्लांट के नाम पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्विनोआ मनाई। और अपने कंट्री में लड़कों के लिए मैं बता रहा हूं, देयर इज सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एज मैसूर, CFTRI जिसको कहते हैं। अपनी कंट्री जब 1947 में आजाद हुई तो 15 दिन बाद मैसूर के राजा ने उनके किले में वो फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR द्वारा बनवाया गया। दिस इज कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर कंट्री इन साइंस। और एक क्विनोआ सीड्स को लेकर के इन आवर कंट्री देयर आर मेनी रिपोर्ट्स ऑन माल न्यूट्रिशन एमंग्स द चिल्ड्रन। तो दीज क्विनोआ सीड्स आर यूज्ड फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ functional food to combat malnutrition in our country. So this is, you see, quinoa seeds are, earlier we were using, आज हम चाय को पी रहे हैं, चिया सीड्स, साल्विया हिस्पैनिया। देखिए उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या है। पहले हमारी क्या टेंडेंसी थी कि दिस चिया सीड्स कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड omega-3 fatty acid. Our students should know omega-3 fatty acid is very important for the functioning of our heart. तो पहले long back our tendency was to eat something which is efficacious for our body in control of cure of different diseases, may be used as nutraceutical. The second thing is कि हम देखो आयुर्वेदिक दवा को लेते हैं, मधु के साथ लेते हैं। क्यों मधु के साथ लेते हैं? मधु कोई दवा तो है नहीं, मधु तमाम दवाओं के इफिकेसी को बढ़ा देता है। इसको हम कहते हैं बायो इनहांसर। देयर आर मेनी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स, मे बी दे आर नॉट मेडिसिनली इंपॉर्टेंट बट इनहांस द इफिकेसी ऑफ other products in the plant, and such products are known as bioenhancer. Like one bioenhancer is piperine, जो काली मिर्च हम खाते हैं पाइपर निग्रम से, पाइपरीन वो निकाला गया। and this piperine enhances, बढ़ा देता है, increases bioavailability of many antibiotics. क्रेडिट गोज टू आवर कंट्री कि अपने कंट्री से सबसे पहले बायो इनहांसर निकाला गया फ्रॉम काली मिर्च बाय डॉक्टर CK अटल, रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी जम्मू। तो पौधों में इस तरह के कंपोनेंट हैं कि जो कि एंटीबायोटिक के इफिकेसी को बढ़ा देते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लांट्स, this is the importance of the plant products, okay? And because of these plants, these plant products may be important component in this third goal of the United Nations Organization for Sustainable Development or the Make in India program of our country. कैसे कैसे पौधे अपने कंट्री में है। देखिए कि एक पौधा है, दिस इज नोन एज ट्राइकोपस जिलेनिकस। दिस प्लांट इज फाउंड ऑन वेस्टर्न घाट, अपने वेस्टर्न घाट पर पाया जाता था। इस पौधे का ये है कि अपने यहाँ नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, हम लोगों के स्टूडेंट को जानना चाहिए। और उसके डायरेक्टर थे डॉक्टर पुष्पांगदन, वो केरल के रहने वाले थे और पहले त्रिवेंद्रम के बोटेनिकल गार्डन में थे। प्लांट का सर्वे करने वेस्टर्न घाट गए, पहाड़ पर गए, थक गए, गेस्ट हाउस में एसी कमरे में आकर के बैठ गए, थकान हो गई उनको। हम लोग ये करते हैं, थोड़ी देर में थक जाते हैं, लेकिन वहां जो इथनिक ट्राइब्स थे, रहने वाले थे, वो क्या थे, जब चाहते थे पहाड़ पर चढ़ जाते थे, उतर जाते थे, उनको थकान ही नहीं लगती थी। डॉक्टर पुष्पांगदन कॉन्टेक्टेड वन इथनिक ट्राइब, कानी ट्राइब, उससे पूछा कि तुम्हारा भी वही है ब्लड, हमारा भी वही ब्लड है, तुम थकते नहीं हो, मैं थक क्यों जाता हूं?
दोज कानी ट्राइब रिपोर्टेड, ये जो पौधा है इसके ट्यूबरस रूट को हम खाते हैं और हमारे थकान को दूर कर देता है। देखिए कैसा ये पौधा है कि आप इसको खाइए, दिन भर काम करिए और आपके थकान को दूर कर देगा। है गो फ्रॉम टायर्ड टू अनटायर्ड। डॉक्टर पुष्पांगदन वर्कड ऑन दिस प्लांट एंड ही गॉट अमेरिकन पेटेंट, और एक फार्मूलेशन बना दैट इज नोन एज आरोग्य पच्चा फ्रॉम दी ट्राइकोपस जिलेनिकस डायोस्कोरिएसी फैमिली। तो ऐसे पौधे हमारे पास हैं। कोई भी देखिए मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में नहीं है कि हमारे थकान को दूर कर दे, लेकिन हमारे पास पौधे हैं कि हम दिन भर पढ़े काम करें और हमारे थकान को दूर कर दे। तो सच टाइप ऑफ प्लांट्स आर देयर ऑन द अर्थ। फ्रेंड्स, कैसे पता चला कि पौधों में कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है? कहां से पता चला? आज हम एसी कमरे में बैठे हुए हैं, लेक्चर दे रहे हैं, एसी कमरे में हम रिसर्च करते हैं। आपके यहाँ का लेक्चर थिएटर जो है वो एसी फिटेड होगा, लेकिन पहले क्या था कि हमारे जो ऋषि थे वो जंगल में रहते थे, जंगल में रहते थे, जानवरों के साथ रहते थे, जानवरों के एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते थे। Observing the activity of our animals in the forest, they came to know about different types of medicinal plants. जैसे कि हिमालय के तराई रीजन में हमारे our great rishis, Indian great saints, they observed that कि when cobra fights, when नेवला मैनगूज फाइट्स विद कोबरा, जब सांप और नेवले की लड़ाई होती है, हमारे स्टूडेंट देखे होंगे सांप नेवले की लड़ाई, कठिन लड़ाई होती है, तो हमारे ऋषि देखे उस लड़ाई के पहले नेवला जाता है और एक पौधे के रूट को खोद करके खाता है और तब सांप से लड़ता है, जिससे उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे और उससे लड़े। वी केम टू नो अबाउट ए प्लांट that is known as sarpagandha, Rauwolfia serpentina. So in this way we came to know about different types of medicinal plants. Rauwolfia serpentina, sarpagandha, जंगल में जानवर की एक्टिविटी को देख करके हमको पता चला। और आज पढ़ाया गया होगा आप लोगों के बीएससी के कोर्स में, उसके रूट से more than 22 alkaloids have been isolated. Are our great saints, they saw कि जब चिंपैंजी का पेट गड़ने लगता है, पेट में दर्द होता है, तो for self medication he eats the plants of हल्दी, अदरक, जिंजीबरेसी के पौधों को खाता है। We came to know about medicinal properties of जिंजीबरेसी, हल्दी, अदरक। तो this zoo pharmacology helped us very much in discovery of different types of herbal medicinal plants. And sitting on the bank of Ganga, Jamuna and Saraswati, our great saints observed different types of animals and we came to know about medicinal property of different plants. आज जो है क्या एरा है कि साइंस में दो तरह का रिसर्च होता है। एक रिसर्च है कि हम पेपर छापते चले, कॉन्फ्रेंस कराते चले, पेपर छापते चले, और दूसरा रिसर्च है कि जिसको हम कहते हैं एडवेंचर्स इन साइंस, बड़ा रिसर्च उसको हम कहते हैं। एंड दैट एडवेंचर इन साइंस इज कि चंद्रमा का खोज, एडवेंचर इन साइंस, हल्ला हो जाएगा, चंद्रमा का खोज, मंगल ग्रह का खोज, या एक साथ इसरो 100 सैटेलाइट छोड़े, दिस इज एडवेंचर्स इन साइंस। लेकिन लोग ये सोचते हैं, गलतफहमी ये है कि ये एडवेंचर इन साइंस केवल फिजिक्स से आएगा, केमिस्ट्री से आएगा, कंप्यूटर से आएगा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आएगा। ऐसी बात नहीं है, हमारे बॉटनी से, हमारे प्लांट साइंस से भी ऐसे तमाम काम किए गए हैं पास्ट में, जो कि चंद्रमा का खोज और मंगल ग्रह के खोज से कम नहीं है। आज कोरोना हुआ है, हम लोग घूम रहे हैं चारों तरफ कि कोरोना के लिए कोई दवा निकल जाए। ऐसे ही 1720 में पैंडेमिक आया, 1820 में आया, 1920 में आया, 2020 में आया। कोई नहीं, कोई दवा। आज तो हमारे पास रिसर्च करके हम खोज सकते हैं, वैक्सीन खोज रहे हैं। 1720 में साइंस डेवलप नहीं था। और उस समय मलेरिया जब होता था 1720 में, गांव का गांव मलेरिया से खत्म हो जाता था, लोग मर जाते थे। देयर वाज नो मेडिसिन फॉर मलेरिया।
पेरू में पेंडेमिक फार्म में कोरोना जैसे मलेरिया आया था, लोग मरते जा रहे थे मलेरिया से। एक बूढ़े आदमी को मलेरिया हुआ और वो बुढ़ा आदमी सोचा कि अब तो हम मर जाएंगे, हमारे लड़के परेशान होंगे। उसने कहा कि चलो हम जंगल चल रहे हैं, अपने लड़कों को सब अपने खेत के बारे में, बैंकड्राफ्ट के बारे में सब बता करके, डीडी के बारे में, और जंगल में चल दिया कि मरेंगे वहां। लेकिन वो मर नहीं रहा था, आदमी घूम रहा था चारों तरफ। वो थक गया, घूमते घूमते उसको प्यास लगी। जब उसको प्यास लगी तो उसको एक पोखरा दिखाई दिया, पोखरा दिखाई दिया। उस पोखरे के पानी को पीने हो गया, लेकिन उस पोखरे के पानी से बदबू आ रही थी। उस पोखरे के पानी को पीने गया, बदबू आ रही थी, वापस चला आया। बट ही वॉज बाउंड टू ड्रिंक द वाटर ऑफ दैट पॉन्ड। उस पोखरे के पानी को पीना था उसको। उस पोखरे के पानी को पिया, उसको नींद लगी, थकान थोड़ी सी दूर हो गई, सो गया। 2-3 बार उस पोखरे के पानी को पिया, उसका मलेरिया खत्म हो गया। कहा वो मरने निकला था कि जंगल में चल के मरेंगे, काशी में चल के मरेंगे, उसका मलेरिया खत्म हो गया। फिर बैक टू पवेलियन गांव चला गया। गांव में उसके लड़के देखे कि पापा फिर कहां से चले आए, हम लोग तो इनका सब दाखिल खारिज म्यूटेशन करा दिए थे, कहां से चले आए। उसने बताया ओल्ड मैन ने कि नॉट दिस, हम बच गए, और एक कोई पोखरा है जिसके पानी को पिए हम बच गए। चारों तरफ हल्ला हो गया। पीपुल स्टार्टेड टू गो टू दैट पॉन्ड। उस पोखरे के पास लोग जाना शुरू किए, उसके पानी को पीना शुरू किए, और अधिकांश लोगों की मलेरिया खत्म होना शुरू हो गई। हल्ला हो गया चारों तरफ कि उस पोखरे में कुछ है जो मलेरिया को खत्म कर दे रहा है। पेरू के राजा के वाइफ को भी मलेरिया हुआ था, उनको भी घोड़ा पर लाद करके उस पोखरे के पास लाया गया। उनका भी जल्दी ही टिकट कटने वाला था, जमराज जी आने वाले थे। उनको उस पोखरे का पानी पिलाया गया, उनका मलेरिया खत्म हो गया। पेरू का राजा 1720 में सोचा कि क्या है उस पोखरे में। उस समय के सारे साइंटिस्ट से कहा कि पूरा ICMR, CSIR, DST, DBT, राजस्थान साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब फंड हम दे देंगे, पता लगाओ उस पोखरे में क्या है जो मलेरिया को खत्म कर दे रहा है। लोगों ने देखा कि देयर वाज ए प्लांट, एक नया पौधा उन लोगों ने देखा। इस पौधे को देखा, और इस पौधे के लीचेट्स, पॉलन ग्रेन उस पोखरे में गिर रहे थे जिससे बदबू आ रही थी। और इस पौधे को माना गया कि यही पौधा है जो कि मलेरिया को खत्म कर दे रहा है। और पेरू के राजा के वाइफ का नाम सिनकोना था, इस पौधे का नाम सिनकोना रख दिया गया। फ्रेंड्स, डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट एंटी मलेरियल प्लांट इज नॉट लेस देन चंद्रमा का खोज, इज नॉट लेस देन मंगल का खोज, मंगल ग्रह का खोज। तो दिस इज आवर प्लांट साइंस। ये जो एडवेंचर ऑफ साइंस इनकी जो लोग बात करते हैं, तो हमारे प्लांट साइंस से भी ऐसे तमाम डिस्कवरी हुई है जो कि एडवेंचर से अरे पौधा नहीं रहता तो न्यूटन नहीं बने होते। ये तो पौधा है कि न्यूटन को न्यूटन बना दिया। तो इंपॉर्टेंस है प्लांट साइंस का। है डिस्कवरी ऑफ यूसी, रबड़ का खोज जिससे कि हम कल्चर बने, एडवेंचर है। डिस्कवरी ऑफ यूसी, एजेटिरेक्टिन फ्रॉम एजेटिरेक्टा इंडिका, और बायोडीजल प्लांट फ्रॉम जट्रोफा कर्कस। ऐसे ऐसे पौधों का जो खोज हुआ। तो आज ये स्लोगन है कि इन दी दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिस पर एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है। तो आज ये है कि इन दी कमिंग सिनेरियो, आगे आने वाले समय में, द टावर रिच कंट्रीज अमेरिका एंड जापान will not rule over the world. The biodiversity countries like India will rule on the world. ये स्लोगन है। This is the importance of biodiversity. और क्या था देखिए, अपने कंट्री में स्पाइसेज मिलती हैं। आज these spices are boons for us in this corona period to boost up immunity in our body. एक पौधे के लिए, स्पाइस के लिए देखिए क्या हुआ था कि अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्पाइसेज ऑफ द इंडिया। फर्स्ट पुर्तगाली आए, यहाँ अपना कॉलोनी बनाए स्पाइस के लिए, इंडियन स्पाइस के लिए। उसके बाद हल्ला हुआ, फ्रेंच पीपुल आए, वो अपनी कॉलोनी बनाए। दोनों में लड़ाई हुई। एक पौधे के लिए 2 कंट्री लड़ी, पुर्तगाल एंड फ्रेंच। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी आई
और ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर डोमिनेटेड ओवर पुर्तगालीज एंड फ्रेंच और अपने कंट्री में वे रह गए। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लांट्स, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडियन स्पाइसेज। यू सी क्या था बच्चे कि देखो पहले जिम्नोस्पर्म्स पूरे थे, लेकिन क्या हुआ कि ट्रायसिक पीरियड में और क्रिटेशियस पीरियड में हमें पढ़ते हैं डायनासोर खत्म हो गया, जिम्नोस्पर्म्स खत्म हो गए, और हम बताते हैं कि लेट क्रिटेशियस पीरियड में एक दूसरे तरह के पौधे आए जिसको हम कहते हैं कि एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन हुआ लेट क्रिटेशियस पीरियड में। हम कहते हैं कि वो उस समय क्या हुआ जो हम अपने हिंदू रीति रिवाज में कहते हैं प्रलय हुआ, और प्रलय के बाद क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने सृजन किया। जब सृजन हुआ नए तरह के पौधे आए तो ब्रह्मा जी थाट कि हम किस तरह के पौधों को दें, और इन दी अमंग्स द प्रिमिटिव मेडिसिनल प्लांट्स देयर आर सम प्लांट्स व्हिच आर मेडिसिनल प्लांट्स। तो प्रिमिटिव पौधे आए क्रिटेशियस पीरियड में, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स आए, उसमें से तमाम पौधे हैं जैसे मैग्नोलिया ऑफिसिनालिस, पूनम जी पढ़ाती होगी मैग्नोलिएसी फैमिली। दिस मैग्नोलिया ऑफिसिनालिस is very much important, medicinally important, मैग्नोलिएसी फैमिली। और उसी फैमिली का इलेशियम है मैग्नोलिएसी फैमिली, तख्ता जान ने उसको वाइनटेरेसी फैमिली में रखा है, एंड दैट इज स्टार एनाइस अगेंस्ट एंजाइटी इंडाइजेशन, और दिस ट्रिमिस वाइनटेराई विंटर में इफिकेसी बार्क की बढ़ जाती है, दैट इज यूज्ड अगेंस्ट इंडाइजेशन एज एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट माने घाव को भरना। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब एंजियोस्पर्म का ओरिजिन हुआ उसी समय से हमको मेडिसिनल प्लांट्स, इवन द प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म they also contain medicinal plants. For friends, this was my first thrust of my lecture. Why in the era of this modern system of medicine people are even today running towards the use of medicinal plants. This was, अब ये है कि 80% population ये देखो चार्ज नहीं हो रहा क्या? आवाज जा रही है ना? ओके हाँ सर आवाज आ रही है। अच्छा चलो तब ठीक है। If it is so, तो what is you see scenario of our country? अपने कंट्री का क्या सिनेरियो है in the field of this angiosperm? Our country is regarded as there are 17 mega biodiversity rich country, and India is amongst one mega biodiversity rich country. There are 35 hot spots of biodiversity. 4 hot spots are found in our country. You see, so we have more than 18,000 angiospermic plants, but 9,000 plants of India, they are of medicinal importance. दूसरा क्या है, पूनम जी आपको पढ़ाई होगी बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बहुत लोग इसको पढ़े होंगे। एंड दिस बेंथम एंड हुकर सिस्टम, बेंथम हुकर दो नाम है, जॉर्ज बेंथम जेडी हुकर, दे बिलोंग टू रॉयल बॉटनिक गार्डन क्यू। लंदन से 4 घंटे की जर्नी है और सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू है। वो सोचे कि हम कोई ऐसा क्लासिफिकेशन दें एंजियोस्पर्म का जिसका रिकॉग्निशन पूरे वर्ल्ड में हो। तो सोचे इंग्लैंड में हमारे बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने फ्लोरा बीएचयू कैंपस लिखा है, 640 स्पीसीज पाए जाते हैं। पूरे इंग्लैंड में 700 स्पीसीज पाए जाते हैं। हमारे बीएचयू जितने पौधे हैं उतने ही स्पीसीज पूरे इंग्लैंड में हैं। उस पर वो क्या अपना क्लासिफिकेशन देते? पूरे यूरोप में जाते, फ्लोरा यूरोपिया 1300 स्पीसीज है, तब भी उनका काम नहीं चलता। दे थॉट टू गो टू 2 कंट्रीज जो कि जहां की डाइवर्सिटी ज्यादा हो, एंड बेंथम वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, बेंथम ऑस्ट्रेलिया गया, एंड हुकर केम टू इंडिया। हुकर जो है वो इंडिया में आया। उस समय अपना देश परतंत्र था, अंग्रेजों के अधीन था। ही विजिटेड आवर कंट्री, ही रोट फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 7 वॉल्यूम में लिखा। क्यों? और इस पर हमारा जो बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन है वो हमारे इंडियन प्लांट्स पर है। ये हमारे बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस है। हुकर क्यों इंडिया आया? पूरे वर्ल्ड में 16 बायोजियोग्राफिकल जोन्स पाए जाते हैं, 8 बायोम पाए जाते हैं, और अपने कंट्री को जब आप देखें
तो वी हैव हिमालय, एल्पाइन क्लाइमेट, वी हैव डिजर्ट, यू सी, रेगिस्तान, वी हैव लेटराइट सॉइल, नॉर्थ ईस्ट. All the 16 biogeographical zones are found in our country. All the 8 biomes are scattered in our country. Because of this, Hooker came to our country. Hooker अपने country में आया उस समय. This is the importance of biodiversity of our country. और अपने country का biodiversity केवल plant scientist और botanist को ही नहीं attractive किया है. सेल्यूकस हमारे कंट्री में चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ने आया. ही वाज डिफीटेड इन बिहार. जब वो डिफीट किया तो उसकी सिस्टर चंद्रगुप्त मौर्य से शादी की. शी वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. और वो लौट करके और ये अपने कंट्री को नहीं गई, वो इंडिया में ही रह गई हमारे बायोडाइवर्सिटी के तरफ अट्रैक्ट हो करके. मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, कविता इस पर लिखा है, ओहो ग्रीक सी छटा यहीं पर हमने पाई, कैसा सुंदर देश यही सबको सुखदाई है, जैसी सुंदरता यहाँ वैसी ही सुख शांति है, इस दिव्य देश में आप ही पाता मन विश्रांति है. दिस इज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड दिस हैज अट्रैक्टेड मेनी साइंटिस्ट. लोग लगा देते हैं ग्रीनलैंड, स्विट्जरलैंड और तमाम लैंड, बट सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी है, विच इज फार फार बेटर देन ग्रीनलैंड, स्विट्जरलैंड एंड इंग्लैंड. उनके बायोडाइवर्सिटी से फार फार बेटर है. एंड टोटल ग्लोबल हर्बल मार्केट में जो डिमांडेड 7 रॉ मटेरियल्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स हैं, amongst these 9 medicinal plants raw materials are luxuriantly found in our country. Garlic जितना चाहे अपने कंट्री में लगा लो, एलोवेरा जितना चाहे लगा लो. तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री. और 44% प्लांट्स ऑफ इंडिया दे आर ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टी. क्या है, कैसे कैसे पौधे हैं, निगलेक्टेड प्लांट्स कुछ अपने कंट्री में हैं जिसको कि हमारे बच्चे नहीं जानते होंगे, लेकिन उनका क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टी है कि अपने कंट्री में नॉर्थ ईस्ट रीजन में काला चावल पाया जाता है, काला जोहा राइस कहते हैं हम उसको, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाया जाता है. और चाइना में पाया जाता था, लेकिन उसको केवल बड़े लोग खाते थे. ये अपने कंट्री में पाया जाता है. और इसमें खुशबू जो होती है बासमती राइस जैसे होती है, बिकॉज इट कंटेन एस्टिल-1 पाइरोन, 2 एस्टिल-1 पाइरोन. बासमती राइस जैसे इसमें खुशबू होती है. बट इन एडिशन टू दिस इट कंटेन्स ओमेगा-3 फैटी एसिड, ओमेगा-6 फैटी एसिड, ये इसमें पाया जाता है. अभी हम केवल आपको ओमेगा-3 फैटी एसिड की बात किए थे. हमारे हार्ट के फंक्शन में ओमेगा-6 एंड ओमेगा-3 फैटी एसिड का बहुत इंपॉर्टेंस है. और एक स्पेसिफिक रेशियो में चाहिए, 6:1. This 6:1 ratio of omega-6 and omega-3 fatty acid is found only in our काला जोहा राइस जो इंडिया में पाया जाता है. You see, इस तरह का हमारा neglected plant है, राइस है, and it is, you see, so medicinally important. Such type of plants are found in our country. और इसमें इतनी खुशबू आती है कि असमीज रामायण में लिखा हुआ है कि इमरजेंसी में रावण को जब कुंभकर्ण को जगाना होता था, इमरजेंसी में, तो कुंभकर्ण को खाना बहुत अच्छा लगता था, खुशबू वाला खाना खाता था, तो उसको काला जोहा राइस का ही खाना खिलाया जाता था कि आसानी से वो जग जाए. तो दिस इज, यू सी, such type of plants are found in our country. And from our country, Charak Samhita, Sushrut Samhita, these, you see, Ayurvedic literature were documented. Or another important Ayurvedic formulation that is known as Chawanprash, जिसको हम कहते हैं, which is ingredient of 42 medicinal plant components. This Chawanprash, और this, you see, एक component based formulation बनाना बहुत आसान है. 42 component based formulation Chawanprash, which is highly antioxidant in nature. और 10 मूलारिष्ट, 10 पौधों के रूट से 10 मूलारिष्ट. इस तरह के आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस, नॉन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस अपने कंट्री से बने हैं. अपने कंट्री में मेडिसिनल प्लांट का ये इंपॉर्टेंस है कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला,
अगरतला क्यों त्रिपुरा की राजधानी है? दूसरा नाम उसको पड़ जाता, बिकॉज इन द त्रिपुरा देयर इज ए प्लांट जिससे हम अगरबत्ती बनाते हैं। वो अगर प्लांट आज इंडेमिक टू त्रिपुरा, त्रिपुरा में वो अगर प्लांट पाए जाते हैं। इसी से उसी अगर प्लांट का एक्वेलिया मैलेसियेंसिस त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये हमारे पौधे के बेस्ट राजधानी अगरतला है। या देयर आर सम स्पॉट्स इन आवर कंट्री लाइक नीलगिरी हिल। नीलगिरी हिल क्यों नाम पड़ा? कि देयर इज ए प्लांट जो 12 साल बाद खिलता है और पूरा का पूरा पहाड़ नीला दिखाई देता है, स्ट्रोबेलेंथस कुंथियेंसिस। दिस प्लांट इन नीलगिरी हिल, and based on this plant there is a important spot in our country, Nilgiri Hill, or there is Ellomela, Cardamom Hills. So this is the importance of plants in our country. आज हम पौधों के इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। जब जब पैंडेमिक आता है, नई बीमारी आती है, उसकी कोई दवा नहीं होती है, तो पौधों का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ये जो पौधा है गिलोय, गुरुच इसको हम कहते हैं, बॉटनिकल नेम इज टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। हार्ट शेप्ड लीफ होती है, कार्डियक लीफ होती है, हार्ट के बीमारी में बहुत यूजफुल है, क्योंकि आयुर्वेद में कहा जाता है सिमिलर क्योर्स टू सिमिलर। जिस पौधे का कोई अंग पार्ट जो है हमारे बॉडी के किसी पार्ट से मिलता है तो उसके अगेंस्ट वो इफिकेशियस होता है। एंड दिस इज, आयुर्वेद में दो तरह के रसायन इंपॉर्टेंट होते हैं। वन इज बल्यवर्धक रसायन जो शरीर में ताकत दे दे, एंड अनदर वन इज इंटेलेक्ट प्रमोटिंग रसायन, मध्य रसायन जिसको हम कहते हैं। दिस टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया इज एनर्जी बूस्टर, इसको हम बल्य रसायन कहते हैं, एफ्रोडिसिक प्लांट कहते हैं। और आज इसका पैंडेमिक के समय, कोविड-19 के समय इंपॉर्टेंस बढ़ा है या इन बूस्टिंग इम्यूनिटी इन आवर बॉडी। और इस पौधे को देखो, हम कहते हैं बच्चे अपने कंट्री में चारों तरफ उगता है। दिस इज आल्सो नोन एज अमृता, इसको अमृता कहते हैं। क्यों अमृता कहते हैं? ये हमारे कंट्री में हमारे बीएचयू से ही लिखा गया है, भाव प्रकाश निघंटू है। और इस भाव प्रकाश निघंटू में लिखा गया है, संस्कृत में है कि बच्चों जब राम रावण की लड़ाई हुई, दशहरे के दिन जब रावण मारा गया, लड़ाई बड़ी कड़ी थी और देवता लोग पहाड़ पर, हिमालय पर बैठ करके कंप्यूटर में लड़ाई देख रहे थे। सामने आ करके जैसे क्रिकेट मैच हम लोग फील्ड में देखते हैं, वो नहीं देख रहे थे लोग, क्योंकि रावण कई बार उन देवता लोगों को डिफीट किया हुआ था। डरे हुए लोग थे, छिप करके लड़ाई देख रहे थे। लेकिन विजयादशमी के दिन जब रावण मारा गया, गिरा धरती पर, तो देवता, दोज गॉड्स केम ऑन द अर्थ, वो कोलंबो लंका आए और रामचंद्र जी से कहे गॉड लेंटिंग कांग्रेचुलेशंस, आपने धरती के भार को हरण कर लिया। रामचंद्र, यू आर मर्यादा पुरुषोत्तम। रामचंद्र जी ने कहा कि मैं कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ भाई, मैं क्या कोई कहेगा कि लक्ष्मण 4 घंटा सोया था तो मैं रोते रोते आंसू हमारे निकले और संजीवनी बूटी हमको पहाड़ से मंगानी पड़ी हनुमान को भेज करके। और ये जो बंदर हमारे तरफ से मरे हुए हैं, भालू मरे हुए हैं, ये मर गए तो इनकी सिस्टर रक्षाबंधन कैसे मनाएंगी, इनकी वाइफ करवा चौथ कैसे रहेगी, तीज व्रत कैसे रहेंगी, हम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हो जाएंगे। इसलिए वो रिक्वेस्ट किए इंद्र से कि ऐ इंद्र, हमारे पार्टी के बानर भालुओं को जिंदा कर दो। राम ने इंद्र से कहा कि हमारे पार्टी के बानर भालुओं को जिंदा कर दो। ऊपर गए इंद्र, अमृत की बरसात किए और वो सारे बानर भालू जो मरे थे वो जिंदा हो गए। जिंदा होने के बाद वो अपना बर्थडे मनाने लगे, और जब बर्थडे मनाने लगे तुम सबों के शरीर से जहां अमृत गिरा, अमृता पैदा हो गया, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया पैदा हो गया। ये अमृता है। रामचरितमानस अगर आप पढ़े होंगे तो उसके उत्तर कांड में लिखा हुआ है कि सुन सुरपति कपि भालू हमारे, परे भूमि निश्चर ही जे मारे, मम हित लाग तजे निज प्राणा, तियहि जी आउ सुरेश सुदाना, सुधा बरस कपि भाल जिलाए, सुखी भय प्रभु पुन पाए। ये टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। और अपने कंट्री में देखिए हैदराबाद में पौधा पाया जाता है जिसको कि हम कहते हैं कैरूलुमा एस्क्लेपिडेसी का ये पौधा है। हैदराबाद के लोग इसकी चटनी बना करके खाते हैं।
हैं। हैदराबाद के लोग हम लोगों जैसे मोटे तगड़े नहीं होते हैं, दुबले पतले होते हैं। क्यों होते हैं? इसकी चटनी खाते हैं। और इसमें ये पता चला कि ये जो है ये जो मोटापा है उसको कम कर देता है। इस कैरुलुमा का फार्मूलेशन बनाया गया रिडक्टा, और रिडक्टा खाने का पहले मैडम ऐसी हेल्दी थी, मोटी तगड़ी थी, जब रिडक्टा खाई तो दुबली पतली हो गई। तो such type of plants are found in our country which are known as famine food in India, fat burner, फैट ब्लास्टर, वेट लॉस इससे कम होता है। तो ऐसे पौधे अपने कंट्री में पाए जाते हैं। और देयर आर मेनी प्लांट्स विच मैनेज डायबिटिक ब्लड शुगर को अपने कंट्री में मैनेज करते हैं। और दिस इज एलोवेरा, सब जानते हैं, सब जगह है, और कितना इसका ह्यूज इंपॉर्टेंस है। तो इंडिया है सच टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी। So many medicinal plants are found in our country. Arthis Rauwolfia serpentina, BSc में लड़के पढ़ते हैं। The roots of Rauwolfia serpentina are, जितनी मोटी रूट होगी उतना ही मेडिसिनली इंपॉर्टेंट होगा, उतना ही अल्कलॉइड ज्यादा पाया जाएगा। ये इसकी थियरी है। और ये राउल्फिया सर्पेंटाइना एक पौधे के रूप में मोर देन 22 अल्कलॉइड्स आर फाउंड। और एक स्टोरी इसमें है, 1942 में गांधी जी जब आमरण अनशन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ शुरू किए थे कि आमरण अनशन की जब तक अंग्रेज चले नहीं जाएंगे मैं अपना अनशन कंटिन्यू करूंगा। गांधी जी को जबरदस्ती ले जाकर के जेल में अंग्रेज डाल दिए कि इनका जो हंगर स्ट्राइक है वो खत्म हो जाएगा। बट गांधी जी वाज ए मैन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। वो बकरी का दूध पीते थे, हैं? बकरी का दूध इज मोर मेडिसिनली इंपॉर्टेंट देन काऊ का दूध, बिकॉज गाय हमारा मीठी घास को खाती है, बकरी जो है वो बिटर घास को खाती है। तो बकरी का दूध, गोट मिल्क इज मोर मेडिसिनली देन दिस काऊ मिल्क। गांधी जी इस पौधे के इंपॉर्टेंस को जानते थे और वो अपने धोती में इस पौधे के पाउडर को बांध करके जेल में लेके चले गए। और जब सवेरे दातुन करते थे, ब्रश करते थे, तो उसी समय इस पौधे के पाउडर को पी जाते थे। क्या था? गांधी जी से कौन मिलने आया, कौन गया, कुछ उनको पता नहीं चला। और ही कंटिन्यूड हिज हंगर स्ट्राइड इसी पौधे के कारण। दिस पौधा, इसका जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, सच प्रॉपर्टी इज नोन एज ट्रांकुलाइजर। ट्रांकुलाइजर, जैसे कि अर्जुन ने विराट युद्ध में बाण छोड़ा था और जितने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य थे किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे, आत्ममुग्ध हो गए थे, वही ये पौधा है। ट्रांकुलाइजर लाइक एक्टिविटी इन राउल्फिया सर्पेंटाइना। ऐसे पौधे आर्विधेनिया सोमनिफेरा, बल्य रसायन, द रूट्स आर मेडिसिनली इंपॉर्टेंट, हमारे शरीर में ताकत देती हैं। सच टाइप ऑफ प्लांट्स। सराका अशोक, सराका गाइनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जितनी है, दो पौधे इंपॉर्टेंट है। वन इज सराका अशोक एंड अनदर वन इज धातकी वुडफोर्डिया, दो है। ये सराका अशोक का, सराका, सारा वाज द वाइफ ऑफ लिनियस, लिनियस के वाइफ का नाम सारा था और इसी के कारण उसने इस पौधे का नाम सराका रखा। शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, लिनियस की वाइफ बहुत सुंदर थी और ये जो पौधा खिलता है तो बड़ा सुंदर लगता है। तो बेस्ड ऑन दिस इस पौधे का नाम लिनियस सराका रखा। और ये सराका अशोक जो है अपने साउथ इंडिया में खूब पाया जाता है, श्रीलंका में पाया जाता है। एंड दिस इज द प्लांट, द बार्क इज मेडिसिनली इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट गाइनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। और देयर आर सो मेनी प्लांट्स, समय कम है। दिस प्लांट अल्मोड़ा में पाया जाता है, जो हमको पथरी होती है, ऑपरेशन कराते हैं, वो तो खैर रेमेडी है ही है, छोटे छोटे पथरी को निकाल देता है। पाषाण भेदी, वर्जीनिया, इलाइट कीमोटाइप इज फाउंड इन अल्मोड़ा। तो such type of plants are found in our country. So many you see cosmetic plants. अपने कंट्री में कॉस्मेटिक का नॉलेज है कि पांडव की जो वाइफ थी द्रौपदी, वो सैरेंद्री बनी और विराट के वाइफ को देखिए तो उनका वो कॉस्मेटिक का काम करती थी। इट मींस कि अपने कंट्री में कॉस्मेटिक का नॉलेज बहुत पहले से था। और सो मेनी कॉस्मेटिक प्लांट्स वेर फाउंड इन आवर कंट्री। अपने कंट्री में लिखा है देयर वाज वन रावण राज्य, रावण राज्य एक था। रावण जो है वो सारे ग्रहों को अपने बस में कर लिया था और उस धरती की सस्टेनेबिलिटी खत्म हो गई थी।
है, उस सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए राम आए, रावण का वध किए और धरती की सस्टेनेबिलिटी मेंटेन हुई एंड देयर वाज राम राज्य। राम राज्य में क्या था? अल्प मृत्यु नहीं कवनो पीरा, सब सुंदर सब बीरत शरीरा। उस समय अल्प मृत्यु नहीं होती थी कि बाप के सामने बेटा मर जाए, है, लोग बहुत दिन तक रहते थे। वो कोई आइबुप्रोफेन प्लस नहीं था कि हमारा थकान दूर हो जाए, ऐसे ऐसे पौधे थे कि हमारे थकान दूर हो जाते थे। और सब लोग बहुत सुंदर दिखाई देते थे, बलवान थे। एफ्रोडिसिक प्लांट्स वेयर फाउंड, विधेनिया सोमनिफेरा लाइक प्लांट्स वेयर फाउंड इन रामराज्य, और सब लोग सुंदर थे। सुंदर मींस एलोवेरा। तो हम ये कहते हैं कि राम राज्य को राम राज्य बनाने में देयर इज कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर मेडिसिनल प्लांट्स आल्सो। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरद शरीरा। टाइम कम है। क्यों इंडिया की इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी है? फ्रेंड्स, पहले क्या था कि पूरा जो ग्लोब था दो जगह यूनाइटेड था। वन इज गोंडवाना कनेक्शन, अनदर वन इज लॉरेशिया कनेक्शन। ये है हमारा पैलियो बताता है, दो तरफ यूनाइटेड था। बाद में कॉन्टिनेंट्स टूटे और जो जो कॉन्टिनेंट्स बने गोंडवाना से, दे आर बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्रीज। जो लॉरेशिया कनेक्शन थे एक्सेप्ट फॉर चाइना, वो क्या थे? दे आर नॉट बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री। ये अपने देखिए, साउथ अमेरिका अफ्रीका को जब चाहे तब आप जोड़ सकते हैं। गोंडवाना कनेक्शन। अपने कंट्री का ओरिजिन मेडागास्कर से हुआ। मेडागास्कर से इंडिया पहले ऐसे था, देखिए कैसे अपने कंट्री का मेडागास्कर से हुआ। मेडागास्कर इज गोंडवाना कनेक्शन। अपने यहाँ गोंडवाना एक्सप्रेस, अपने यहाँ गोंड ट्राइब। तो दिस गोंडवाना कनेक्शन, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, they are Gondwana connection, and this Gondwana connection makes India a biodiversity rich country. ये गोंडवाना कनेक्शन के कारण हम बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री हैं। और ये जो दो पौधे हैं, ये दोनों पौधे इंडिया में पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, जो कि हमको कोरिलेट करता है इसी दोनों जगहों पर कि वी आर गोंडवाना कनेक्शन। तो दिस गोंडवाना कनेक्शन मेक्स इंडिया ए बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री। ये है इंपॉर्टेंस अपने बायोडाइवर्सिटी का। लेकिन फ्रेंड्स, हमने ये बताया कि हुकर केम टू आवर कंट्री, ही रोट फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया। लेकिन उसी फ्लोरा के इंट्रोडक्शन में उसने लिखा है, ए सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडियन फ्लोरा इज द कॉन्फ्लुएंस, माने संगम ऑफ फ्लोराज ऑफ सराउंडिंग कंट्री। वो ये लिख दिया है कि इंडिया का कोई अपना निजी फ्लोरा नहीं है। यहाँ के जो पौधे हैं कुछ मलेशिया से आए हैं, यूरोप से आए हैं, जापान से आए हैं। बुद्धिज्म के कारण यहाँ पौधे आ गए हैं। इंडिया का कोई अपना पर्सनल फ्लोरा नहीं, ये लिख दिया है। लेकिन बात इससे देखो क्या जाती है कि आज बायोडाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंस को देखते हुए आप रिकलेक्ट करिए 1992 में क्या हुआ था। एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, अर्थ समिट हुआ था, और उसमें ये कहा गया कि द स्टेट्स विल हैव सोवरेन राइट ऑन बायोडाइवर्सिटी। हर कंट्री का अपने बायोडाइवर्सिटी पर सार्वभौमिक अधिकार होगा। ये है क्योंकि क्या कुछ होता था अभी हम बताएंगे। हमारे कंट्री और चाइना में बायोडाइवर्सिटी का प्रॉब्लम है। चाइना से केवल हमारा लद्दाख वाला टेरिटरी का प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज पामीर बेल्ट, और इस पामीर बेल्ट से सब पहाड़ निकले हुए हैं। दीज आर चाइनीज माउंटेन, दिस इज हिमालय। Himalaya is the youngest mountain. Chinese mountains are older than Himalaya. चाइना ये कहता है कि हिमालय पर पेड़ पौधे कहां से चले गए? वो तो सब हमारे पहाड़ से इंडिया में पेड़ पौधे हिमालय पर चले गए। तो अपना अधिकार इस पर दिखा। There is a problem, biodiversity problem in between China and India also. But luckily, our plants, most of the dicards, 75% Indian dicards, they are polyploids, and Chinese dicards, they are diploid. ये हमको प्रोटेक्ट करता है कि हो सकता है चाइना से ही पौधे आए हों, लेकिन हिमालय को जब क्रॉस किए हों तो स्पेसिएशन, हिमालय के क्लाइमेट के कारण स्पेसिएशन हुआ हो, और इंडियन प्लांट्स आर डिफरेंट देन चाइना। ये है जिस प्रोटेक्ट हमने बताया कि क्यों बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। कि देखिए ये एक पौधा है जिसको हम कहते हैं कि दिस इज कैथेरेंथस रोजियस, विंका रोजिया, सदाबहार। ये पौधा हम ग्रो करते हैं। क्या है इस पौधे का?
कि दिस इज द नेटिव ऑफ मेडागास्कर। ये पौधा मेडागास्कर में पाया जाता है, लेकिन इल्लीफॉर्म मेडागास्कर गई और इस पौधे के इथनो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस को देखी, इस पौधे के रूट को ले गई और क्या की कि इसकी पूरी फाइटोकेमिस्ट्री की और 2 इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स भिनब्लास्टीन एंड भिनक्रिस्टीन minor components of these plants, इसको एंटी कैंसरस प्लांट्स दे वे डिस्कवर्ड। पौधा मेडागास्कर का, इल्ली ने इसके एंटी कैंसरस कंपाउंड को बनाया, पेटेंट करा लिया है पौधा मेडागास्कर का, और उस पर पेटेंट के कारण अधिकार हो गया इल्ली कंपनी का। कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला, ये चीज हुआ। पेड़ पौधा मेडागास्कर का अधिकार उनका हो गया, कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला, जो हम आज कहते हैं। एंड इन बॉटनी दिस इज नोन एज बायोपायरेसी, दिस इज नोन एज जेनेटिक डकैती, जीन रॉबिंग की। एक पौधे के द बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्रीज illegally they exploit the important biodiversity of biodiversity rich country but biotechnologically poor country। जो बायोटेक्नोलॉजिकली रिच कंट्री है, गरीब कंट्री के बायोडाइवर्सिटी को इलीगल एक्सप्लॉइट करती हैं, और इसको हम कहते हैं बायोपायरेसी। ये पौधा अफ्रीका का है, 5000 टाइम मोर स्वीटनर देन शुगर, और इसके शुगर के कंपोनेंट को, जीन को पेटेंट करा लिया गया। और ये जो पौधा है एपेटाइट सप्रेसर प्लांट, कलिहारी डिजर्ट इन साउथ अफ्रीका। तो ये सब चीजें हैं। देयर आर सो मेनी केसेज ऑफ बायोपायरेसी। अपने यहाँ जो जामुन मिलता है उसके पूरे जीन सीक्वेंसिंग को चाइना ने करा लिया है। तो देयर आर सो मेनी केसेज ऑफ बायोपायरेसी एंड दिस बायोपायरेसी इज ए ह्यूज इशू। And India is a country, biodiversity rich country. We have huge knowledge of traditional knowledge of undocumented knowledge of medicinal plant, and there are many reports कि हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को ये जो बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्रीज हैं इलीगली दे गॉट पेटेंटेड। ये चीजें हैं जिसको कि हमको रोकना होगा। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट बॉटलनेक फॉर अस। ये बायोपायरेसी को कैसे रोका जाए? तो वी हैव टू डॉक्यूमेंट आवर, साइंटिफिकली डॉक्यूमेंट आवर ट्रेडिशनल नॉलेज विच वी कॉल एज बायो प्रॉस्पेक्शन। हमको अपने मेडिसिनल प्लांट को बायो प्रॉस्पेक्ट करना होगा। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दे शुड बी साइंटिफिकली एनालाइज्ड, इंपॉर्टेंट जीन्स दे शुड बी साइंटिफिकली एनालाइज्ड। और ये डॉक्यूमेंटेशन केवल हम मेडिसिनल प्लांट का ही नहीं कर सकते हैं। देयर में बी डिफरेंट AUC अपॉर्चुनिटीज। ये एक पौधा है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाया जाता है। दिस इज नोन एज सैप्रिया हिमालयाना। और ये जो बदबू करता है, लार्जेस्ट फ्लावर रूट पैरासाइट है सैप्रिया हिमालयाना, और जब ये खिलता है तो बदबू करता है। इतना तेज बदबू करता है कि 6-7 किलोमीटर तक आदमी का आना जाना बंद हो जाता है। तो आज जो है जीन शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी पता चल गई है। तो क्या करना होगा कि इसके बदबू वाले जीन को निकाल करके भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर जितने पौधे हैं इसके बदबू वाले जीन को ट्रांसमिट कर दो, जिससे कि कसाब टाइप आतंकवादी जो पाकिस्तान से आते हैं उनको रोक दिया जाए। वी मे डॉक्यूमेंट बायो प्रॉस्पेक्ट और बायोडाइवर्सिटी। सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आर विद अस। किसी तरह से हम कर सकते हैं। ऐसा हमने किया है कि असम में जो मिर्चा पाया जाता है उसको हम लोगों ने यूज किया था भुज जलोकिया को, है कश्मीर में, है आतंकवादियों को हटाने के लिए। तो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। CSIR has developed traditional knowledge digital library on February 9, 2009। ये ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जो है CSIR ने डेवलप किया है, जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको डॉक्यूमेंट किया गया है 5 लैंग्वेजेस में। एंड दिस डिजिटलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक दी बायोपायरेसी। अब हम 10 मिनट में खत्म कर देंगे पूनम जी, 10 मिनट में हम खत्म कर देंगे। बहुत अच्छा है, आप जितना चाहे बोल सकते हैं। नहीं हमारा समय जो दी हो ना, भागे के लोग भी तो होंगे। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो 10 मिनट में ठीक है सर, बिल्कुल।
तो देखो बच्चों, आज आया है नैनो टेक्नोलॉजी, सब लोग नैनो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी। लेकिन अपने कंट्री में तो नैनो टेक्नोलॉजी बहुत पहले से था। छोटे थे हम लोग, आंख में सुरमा लगाते थे। दिस सुरमा इज कार्बन नैनो टेक्नोलॉजी। 400 साल पहले वर्णन है रामचरितमानस में, तुलसीदास ने लिखा है, जथा सुअंजल अंजद्रिग साधक सिद्ध सुजान महिमा देखत शैल बन भूषण भूर निदान। हमारे ऐसे ऋषि महात्मा थे कि सुरमा लगा करके और पहाड़ के नीचे क्या है ये देख लेते थे। तो यू सी, दिस इज द नैनो टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री। कमल के पत्ते पर कीचड़ नहीं लगता है, क्योंकि कमल के पत्ते पर लोटस नैनो पार्टिकल पाया जाता है, सेल्फ रिमूविंग, मड को रिमूव करता है। ये है प्लांट्स में सो मेनी नैनो पार्टिकल्स आर फाउंड, और इसको हम सो मेनी डिवाइसेज वी हैव डेवलप्ड। और कुंभ मेला लगेगा, धुई रमाना, जाड़े में हम सूट पहन करके कुंभ मेले में जाएंगे। साधु महात्मा लोग धुई रमाते हैं, कोल्ड के अगेंस्ट स्ट्रेस देता है उनको, है। तो दिस इज यू सी नैनो पार्टिकल, है। तो सो मेनी, घर में जब पहले जब रोटी बनती थी मिठास ज्यादा होता था, तो ये सब चीजें हैं। लड़ाई में तानाजी यू सी घोरपाट का यूज किए थे औरंगजेब के खिलाफ। औरंगजेब के पैर में, अरे घोरपाट के पैर में, लीजर्ड में नैनो पार्टिकल पाया जाता है और किले को मुक्त कराए। तो नैनो टेक्नोलॉजी का नॉलेज अपने कंट्री में बहुत पहले से था। तो करना यह है कि आयुर्वेद में जो हमारे फार्मुलेशंस हैं, वी हैव टू मेक देम मोर इफिकेशियस थ्रू सच टाइप ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। और हमको ये करना है कि जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है, पहले कोई बोल रहे थे हमारे लेक्चर के पहले, बिकॉज ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड सो मेनी रीजंस आर देयर। तो ये बायोडाइवर्सिटी के लॉस को क्या है अपने कंट्री में, इन्वायरमेंटल इथिक्स खत्म होता चला जा रहा है। पहले हम ये मानते थे किसी पौधे को किसी देवता से कोरिलेट करते थे, लेकिन ये चीज खत्म होता चला जा रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस आवर बायोडाइवर्सिटी इज लास्ट। देखिए वो जो हम नवरात्र मनाते हैं, 9 दुर्गा को कोरिलेट किया गया है 9 प्लांट से, है। तो ये इथिक्स जो है वो खत्म होता चला जा रहा है। तो दिस वी हैव टू रिवाइव, इन्वायरमेंटल इथिक्स वी हैव टू रिवाइव, है। और दूसरा जो क्लाइमेट चेंज है, ये क्लाइमेट चेंज दैट इज अफेक्टिंग आवर मेडिसिनल प्लांट बायोडाइवर्सिटी। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में एक स्पेसिफिक डोज दिया हुआ है। एक क्लाइमेट चेंज से, टेम्परेचर बढ़ने से या तो एक्टिव प्रिंसिपल बढ़ता होगा या घटता होगा, रिसर्च की बात है। अगर बढ़ा तब भी आयुर्वेद में जो डोज दिया हुआ है वो अल्टर करेगा, एक्टिव प्रिंसिपल घटा तब भी वो डोज अल्टर करेगा। तो हमको क्या करना है, वी हैव टू ऑब्जर्व नेक्स्ट रिसर्च इज कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज on secondary metabolites of our plant. This we have to observe. और ये क्लाइमेट चेंज के कारण पौधों की फ्लावरिंग पीरियड बदलता चला जा रहा है। जो पौधे जून में खिलते थे मार्च में खिल जा रहे हैं। तो अगेन वी हैव टू डॉक्यूमेंट दीज प्लांट्स, लोकल फ्लोरा फिर से लिखने की जरूरत है। और हिमालय पर जहां पार्थिनियम नहीं मिलता था, टेम्परेचर बढ़ने से वो पार्थिनियम नाउ इट इज ऑब्जर्व्ड इन higher altitude of Himalaya, and this Parthenium you see is dangerous for our medicinal plant biodiversity at Himalaya. So this climate change is affecting our medicinal plant biodiversity. We have to protect, create awareness in our students. और हम लोगों को जो ये 18 साल की लड़की है ग्रेटा, इन्वायरमेंटलिस्ट है, ये ग्रेटा जो है जा करके जो लेक्चर दी थी ट्रंप के सामने और मोदी के सामने, वी शुड क्रिएट अवेयरनेस कि ये कैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में अपना लेक्चर दी थी। नहीं खुल रहा है, कोई बात नहीं है। तो वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस इन आवर स्टूडेंट्स अबाउट द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमने बनाया कि ये जो हमारे जो थे रामावतार वगैरह पहले हमने बता दिया, फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ द अर्थ इनका अवतार हुआ था, ये चीज हमने बता दिया। तो दिस इज कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस को हमको बचाना है। एंड देयर आर सो, अब देखिए लास्ट है
पेड़ पौधे के इंपॉर्टेंस को हम कब समझते हैं? आज कोरोना में समझ रहे हैं कि कौन स्पाइस खाएं, तेज पत्ता खाएं और गिलोय खाएं। हैं? जब डेंगू आया था, डेंगू की कोई दवा नहीं, प्लेटलेट्स कम हो रही थी, सब जानते हैं। पपीते का हम लोग एक्सट्रैक्ट लेकर के पीते थे। इवन जो एलोपैथिक डॉक्टर है वो भी पपीते को प्रेस्क्राइब करते थे। कैरिपिल लाइक यूसी टेबलेट्स इनको लोग प्रेस्क्राइब करते थे। तो जब जब पेंडेमिक आता है यूसी, पेड़ पौधों के इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अब लास्ट जो हमारा थीम था, थिंक लोकली एक्ट ग्लोबली। फ्रेंड्स, नारा क्या था? थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। पैट्रिक ने दिया था कि दूसरे कंट्री में जा करके उनके कल्चर को देखना चाहिए और हमको वो अपनाना चाहिए कि हम एडवांस हों। लेकिन इंडिया के केस में क्या है कि we have huge knowledge of ethno-medicinal plants. So many medicinal plants are with us. और आज जो इंडिया की जीडीपी नीचे जा रही है, माइनस में जा रही है, अगर हम अपने इथनो मेडिसिनल नॉलेज से, देखिए संजीवनी बूटी हनुमान जी लाए हैं, संजीवनी बूटी टाइप ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोई हर्बल फार्मुलेशन हम बना दें जिसका कि पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्निशन हो, 2-3 हम बना दें, हमारा जीडीपी ऊपर हो जाएगा। है? तो नाउ क्या है जो मोदी जी किए थे? वी शुड बी वोकल फॉर आवर लोकल मेडिसिनल प्लांट, लोकल इथनो मेडिसिनल नॉलेज। इसका इंपॉर्टेंस है कि जो इथनो मेडिसिनल प्लांट है, कोटा में जो इथनो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उस पर हमको काम करना चाहिए। एंड वी शुड फार्मुलेट सच टाइप ऑफ फार्मुलेशंस which are very much effective and global importance that will be for the country। बायो इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, ये है सच ए ह्यूज बायोडाइवर्सिटी इज विद अस एंड वी शुड यू सी ट्राई टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। थैंक यू वेरी मच। क्या है कि जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मनम सृजाम्यहम्। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, जब जब बदमाश आते हैं, आतताई आते हैं, तो हम अपना जन्म लेते हैं, रूप लेते हैं और उन आतताइयों को हम खत्म कर देते हैं। तो ऊपर से धन्वंतरी कह रहे हैं पेड़ पौधों के डॉक्टर कि अरे पृथ्वी वासियों, अरे कोटा वासियों, घबराना मत। जब जब नई नई बीमारियां आएंगी, पेंडेमिक आएगा, तो हमारे प्लांट बायोडाइवर्सिटी की तरफ देखना। हमने ऐसे ऐसे पेड़ पौधों को दिया है कि उन सारी नई नई बीमारियों को दूर करेगा। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स, माय स्टूडेंट पूनम जायसवाल, फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू डिलीवर ए टॉक थ्रू दिस वेबिनार। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. Even we are thankful. लेक्चर है एमएससी का। सर, इट्स रियली, मैं तो कह सकती हूँ कि आप द्रोणाचार्य हैं बॉटनी के। एंड 2 बातें हमने आपके इस लेक्चर में देखी कि किस मनोरंजक और रोचक तरीके से आपने सारा अपना उद्बोधन दिया और प्रेजेंटेशन दिखाया। बहुत सारी जानकारियाँ हमारे नेचुरल वे में आपने रिप्रेजेंट की, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। और आपकी कुछ चीज़ें जो आपने मेंशन की हैं, वो हमारे स्टूडेंट्स को ज़रूर इस बात के लिए मोटिवेट करेंगी एंड डेफिनेटली दे विल स्टार्ट थिंकिंग लोकली एंड एक्टिंग ग्लोबली एंड वाइस वर्सा। थैंक यू वेरी मच सर।